90% of the realtors they don't know the market. ईरान, यूएस, इजराइल वॉर जो हुआ है अभी ये चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट लगता है इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? सबसे इंपॉर्टेंट बात अंकुर रियल एस्टेट के अंदर या कोई भी एसेट क्लास के अंदर क्या है, पैसा कमाना नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉ है कि उनका प्रिंसिपल प्रोटेक्ट करना। आपको लगता है एक्चुअली में मार्केट और डाउन जाएगी? Hi everyone, I am Ankur Dwivedi, leading sales at Kriva, bringing you conversations that move the real estate market. You might be thinking, another real estate podcast? Well, not quite. Welcome to Real Estate Talks by Kriva. At Kriva, we believe real estate is not just about spaces. It's about people, relationships, and the journeys that shape the market. At the heart of it all are our channel partners, the ones who hustle every day, build trust, close dreams, and keep this ecosystem moving. With Real Estate Talks, we bring their stories to the forefront, their journeys, their challenges, their wins, and their perspective on whether the market is headed. This is not just a podcast, it's a conversation with the people who truly make it happen. Welcome to Real Estate Talks. Let's reimagine possibilities together. And now, introducing our first guest, someone who truly needs no introduction, an industry veteran, a trusted friend, and a name that commands respect in the real estate ecosystem. He has worked with some of the renowned developers and now leads his own venture, Homeworks. Welcome, Saurabh. एक सवाल ना मेरे मन में बहुत दिनों से है. Since you have actually shifted to other side, ऐसा क्या हुआ? You know, you have actually worked with a lot of renowned developers. Now you are actually working as an advisor or channel partner, as we call in our industry. ऐसा क्या हुआ that you had to make that shift to other side? ठीक है, उससे पहले अंकुर मैं ना थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ. सो आई हैव वर्कड विद मल्टीपल कंपनीज. आई वर्कड विद DLF, आई वर्कड विद ईमार, शाहपुर जी, पालन जी, पूरी कंस्ट्रक्शन एंड स्मार्टवर्ड वाज माय लास्ट असाइनमेंट. देन आई मूव टू दिस साइड ऑफ द टेबल एंड स्टार्टेड माय वर्क. अब क्या था, ये जो होराइजन था ना वो 18 साल का था. तो आप अगर एवरेज वर्किंग टेन्योर निकालते हो, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 3 to 4 years. ठीक है, तो मेरे को जब मैं अपना लास्ट स्विच मारा और मैं आई मूव टू अनदर कंपनी, तो मेरे को ये लगा कि यार एवरी 3 years, एवरी 4 years यू हैव टू अडाप्ट टू न्यू इकोसिस्टम, न्यू कल्चर. ठीक है, उनके वर्क एनवायरमेंट्स के साथ काम करना पड़ता है. एंड फाइनली बीइंग इन द सेल्स यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द टारगेट्स दैट इज बीइंग गिवन बाय द कंपनी. ठीक है, तो एक आपके पास हमेशा ही प्रेशर, जब भी आप कंपनी स्विच करोगे तो आपके ऊपर प्रेशर होगा अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ मेरे को प्रूव करना है अपने आप को. ठीक है, तो और अपने आप को अडेप्ट भी करना है. एंड यू नो हाउ द पॉलिटिक्स एंड कॉर्पोरेट वर्क्स. इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनी बट अक्रॉस कॉर्पोरेट, मतलब यू हैव टू मैनेज पीपल. सो आई थॉट कि यार मैं ये कब तक अडेप्ट करता जाऊंगा, मैं लेट्स स्टार्ट माई ओन. और ये बहुत टाइम से माइंड में था कि मेरे को अपना करना है. तो आई थिंक दैट वाज अ राइट टाइम दैट आई स्विच्ड फ्रॉम corporate to my own venture because the market was booming at that time. तो मुझे लगा ये right opportunity है, right एक switch होगा. ठीक है, and I got right people on my side. So कुछ हम 3-4 लोगों ने मिलके we initiated as a platform. So people were very good. We worked together for around 2 years. Then everyone is working very good in their own horizon. So that's how the movement happened. Or I think that was required for my personal evolvement also. Okay. Yeah. तो अभी तक की जर्नी कैसी रही? What has been your experience till now? अंकुर पर्सनली बताऊं, जर्नी बहुत अच्छी रही क्योंकि 3 साल इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा किया. 2022 दिसंबर में मैंने अपना काम स्टार्ट किया और 3 साल तक बहुत अच्छा बुल रन था मार्केट के अंदर. सो इवन आई एंजॉयड दैट बुल रन. ठीक है, I was able to do a decent revenue on my side and I was majorly working on high product categories जिनकी जो वैल्यू टिकट होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उन पे अपने काम करा. तो बहुत अच्छी जर्नी रही अभी तक. एंड एट फेज होता है आपका, मतलब जब आप अपना काम करते हो. लेकिन एक बहुत पॉजिटिव चीज़ क्या थी, आई गॉट फ्रीडम ऑफ टाइम. ठीक है, वो मेरे को फ्रीडम ऑफ टाइम मिल गया.
ठीक है, मैं खुद सिलेक्ट करता था कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए राइटली फिट है, कौन सा प्रोडक्ट मैं अपने शोल्डर्स पे लेके जा सकता हूँ मार्केट के अंदर, कौन सा ब्रांड है दैट आई शुड कैरी। मेरे ऊपर कोई फोर्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं थी किसी की, मैं किसी से सैलरी नहीं ले रहा था कि मेरे को ये बेचना है। अगर उस प्रोडक्ट में मेरे को वैल्यू प्रोपोजिशन नजर आती थी, उस प्रोडक्ट में मेरे को जान नजर आती थी, मुझे लगता था कि उसकी लोकेशन अच्छी है, इट्स अ राइट वैल्यू फिट फॉर द क्लाइंट्स, मैं वो ही सेल करता था, चाहे मेरा रेवेन्यू कम हो जाए। लेकिन आई नेवर टुक अ रॉन्ग कॉल इन गिविंग अ रॉन्ग प्रोडक्ट टू माय क्लाइंट। Oh, that's great. So when you look back, look back at your career, ऐसे कौन से लेसन्स हैं या ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसने आपके वर्क एथिक्स, आपके वर्क स्टाइल को शेप अप किया है? इससे पहले मैं पिछले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा और आंसर देता हूँ। तो 2022 दिसंबर में मैंने अपना स्टार्ट किया, ठीक है, अच्छा फेज निकल रहा था। सो आई वर्कड on a corporate side for almost around 18-19 years, and I was working on a leadership level. At the same time, my wife was also working with a corporate. She worked with Max New York Life Insurance for approximately 18-19 years. ठीक है, 2023 दिसंबर में मैंने उसको भी बोला, you also leave the job. We jointly will run this company. ठीक है, we will take informed and conscious calls of selecting the inventories, and we will give right product with the right guidance to the customers. ठीक है, आपको जो ये रियल एस्टेट का इकोसिस्टम है, या आपने बहुत कुछ मार्केट के अंदर देखा हुआ है कि डेवलपर्स क्या क्लाइंट्स के साथ करते हैं या ब्रोकर्स क्या क्लाइंट के, सो वी वांट टू ब्रेक दैट क्लटर, वी वांटेड टू ब्रिंग दैट प्रोफेशनलिज्म इन रियल एस्टेट. सो कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट, मी, my wife Meenakshi, we created a setup. हमने अपनी एक टीम बनाई, अच्छी टीम है हमारी. We have a team of around 12-14 people. ठीक है, हमने एक अच्छी सी टीम बनाई, एंड मार्केटिंग टीम भी है हमारी, HR का बंदा भी है, सब कुछ. सो वी ट्राई टू डू इट इन अ कॉर्पोरेट वे, एंड हम क्लाइंट को भी वैसे ही सर्विस करते हैं. एंड आवर कमिटमेंट इज आवर प्रायोरिटी बिकॉज आवर फेस वैल्यू इज इन्वॉल्व इन टू इट. And do you think as a team you have been able to make that shift, make that change? Absolutely. So I manage the front end part. I manage the developer relationship. I manage the on ground closures of the transactions where the know-how is required. Meenakshi manages the operations and the back end, where the calls come. She takes the calls and everything, and her team takes the call and they guide them to the right. अगर client के दिमाग में 2 products चल रहे हैं, ठीक है, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, हम वी हैव ए आंसर टू इट, सीइंग देयर रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव ए आंसर टू इट कि आपके लिए राइटली फिट प्रोडक्ट क्या. सबसे इंपॉर्टेंट बात अंकुर रियल एस्टेट के अंदर या कोई भी एसेट क्लास के अंदर क्या है, पैसा कमाना नहीं है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉ है कि उनका प्रिंसिपल प्रोटेक्ट करना. ठीक है, ऐसा ना हो कि ऐसे प्रोडक्ट के अंदर पैसा लग जाए कि वो प्रिंसिपल भी गायब हो जाए. ठीक है, सो दैट्स द एथिक्स वी फॉलो. ठीक है, मैं मार्केट को ड्राइव नहीं कर सकता. ठीक है, मार्केट सबको ड्राइव करती है. मैं अपने हिसाब से उनको प्रोडक्ट दे सकता हूं कि हाँ सर, दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, दिस इज ए ग्रेट डेवलपर, गुड लोकेशन, इट हैज अ गुड होराइजन, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू कम वेरी स्ट्रांग, वी विल सी द अपसाइड. लेकिन वो जो अपसाइड है, इट कैन हैपन इन 3 years, 4 years, 5 years, बट इट विल हैपन, बट वो मार्केट ड्राइव करेगी. वो वी आर जस्ट वन ऑफ द एलिमेंट टू द मार्केट. Well, this is a prime example of real collaboration. If you actually have a right work ethics in place, you can actually change the entire, not only real estate ecosystem, you can actually make a change in any kind of ecosystem. Absolutely. So I think kudos to you guys. I think Thank you. This is a prime example of right kind of collaboration. Thank you. Now let's talk about real estate. हाँ. For the reason we are here. Yes. लास्ट ईयर तक ना सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी. right. इनफैक्ट हमारा जो लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था, हमने सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी बातें करी थी. अभी आपको लग रहा है कि उस मार्केट हैज़ मूव्ड अहेड, और डू यू सी सम अदर चेंजेस, और डू यू सी सम अदर शिफ्ट इन द मार्केट? देखो अंकुर, द मार्केट हैज इवॉल्व्ड, द मार्केट हैज मैच्योर्ड, लॉट ऑफ न्यू डेवलपर्स हैव कम इनटू द मार्केट. ठीक है, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट एंड प्रोफेशनल डेवलपर्स आर कमिंग इनटू द मार्केट राइट नाउ. ठीक है, आप कह रहे हो ना कि मार्केट हैज मूव्ड अहेड.
So a lot of developers have moved ahead without thinking the sustainability. But there are few of the developers out in the market जिनका core is sustainability. Those are listed developers, ठीक है, A grade developers जो products को बना रहे हैं. अभी एक प्रोडक्ट बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे. आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑन दिस पॉडकास्ट और एनी ऑफ द ब्रांड बिकॉज इट विल नॉट बी राइट टू द अदर डेवलपर्स. एक डेवलपमेंट बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे. इट इज जस्ट नेक्स्ट टू ग्लोबल सिटी. वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लीड प्लैटिनम लेवल पे वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है. इट्स दे आर टारगेटिंग द सस्टेनेबिलिटी इनटू दे आर क्रिएटिंग 3.5 acres ऑफ फॉरेस्ट इनटू देयर development. So that's a kind of involvement those happening. I believe all these developers should bring sustainability into their projects. Government ने बहुत laws को tweak करा है to bring the sustainability. जैसे solar panels important हो गए, rain harvesting important हो गई, या बहुत सारे और elements हैं जो गवर्नमेंट ने ही इन्वॉल्व कर दिए हैं बाय लॉज के अंदर कि आपको करना पड़ेगा मेरे को. लेकिन मुझे ये लगता है कि इन डेवलपर्स को खुद आगे बढ़ के सस्टेनेबिलिटी पे और काम करना चाहिए. तो आपको लगता है कि लोग अब सिर्फ घर रहने के लिए नहीं लेते, वो अब एक एक्सपीरियंस के लिए भी बाय करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली. अगर देखो घर रहने के लिए चाहिए तो जहां पे वो रह रहे हैं तो वहां पे वो खुश ही रह रहे थे. ठीक है, आज दिल्ली से इतनी माइग्रेशन हो रही है, क्यों हो रही है? Because people want to have experience, they want to have clubhouse, they want to have safety, security, a lifestyle for their kids, lifestyle for themselves. So that's the reason people are moving towards this side. अब जो थ्योरी है रियल एस्टेट की, इट्स नॉट ब्रिक एंड मोटार, इट्स नॉट द फोर वॉल्स, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट द एक्सटर्नल्स ऑफ योर अपार्टमेंट्स और योर हाउस, व्हाट काइंड ऑफ अमेनिटीज यू आर गेटिंग. अब एक डेवलपर यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेके आ रहा है, दूसरा डेवलपर यहाँ पे लॉन्गेविटी क्लिनिक लेके आ रहा है, तीसरा डेवलपर इज थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग फॉरेस्ट इनटू इट. लॉट ऑफ न्यू इन्वॉल्वमेंट इज हैपनिंग. आपको जो राइटली फिट बैठता है प्रोडक्ट, आप वो आइडेंटिफाई करिए. जो आपने बात की हेल्थ केयर लॉन्जिविटी की, तो आपको लगता है कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो नए फॉर्मेट्स हैं, मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे सीनियर लिविंग हो गया या मल्टी जनरेशनल ग्रुप हाउसिंग, कम्युनिटी लिविंग हो गया. आपको लगता है ये नेक्स्ट स्टेप है अब इंडस्ट्री का? तो अंकुर, इसका आंसर डेटा पॉइंट्स में. आज की डेट में इंडिया की एवरेज एज इज 29. 2000 मतलब आज आपसे 5 साल पहले लोगे या थोड़ा टाइम पहले लोगे तो वो 25 साल होती होगी, उससे पहले और कम होती थी. तो जो एवरेज एज है एंड एक्सपेक्टेड एवरेज एज बाय 2030 2035 it will go up to 32-33 years. तो हमारी जो एवरेज एज है हमारी पॉपुलेशन की, दैट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, जब वो इंक्रीज होगी तो सीनियर लिविंग प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट आएगी. आज इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सीनियर लिविंग प्रोडक्ट्स क्यों चलते हैं? क्योंकि वहां पे जो एवरेज पॉपुलेशन एज है दैट इज ऑन द हायर साइड. 40 साल, 45 साल, 50 साल. That's a reason that particular product is a need based product. यहाँ पे उसकी acceptability, absorption आनी start हो गई है. People have started invested into senior living concepts. Already Max have done lot of senior living products across North India. They have their product in Dehradun. They have launched in Noida. They have already launched in Gurgaon. DLF is coming up with their senior living concept. There are few more developers out in the market. Those are exploring senior living. अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर स्टडी करोगे ना तो रेंटल ROI, रेंटल यील्ड्स ऑन सीनियर लिविंग आर हायर. द कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन सीनियर लिविंग्स आर हायर. ठीक है. इज इट कंपेरेबल टू कमर्शियल एंड रिटेल फॉर्मेट? ऑब्वियसली उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल रेजिडेंशियल से आपको ज़्यादा मिलती है. बट एट द सेम टाइम इंडिया इज ऑन ए कस्प ऑफ मूविंग अहेड. और आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे कि ये जो सीनियर लिविंग का एक्सेप्टेबिलिटी, अभी इंडिया में बहुत बड़ा टैबू है सीनियर लिविंग हाउसिंग. पीपल स्टार्ट टेकिंग इट एज कि हम मतलब वो बुजुर्गों का वृद्धाश्रम है. भाई वृद्धाश्रम कौन सा 7 करोड़ का आता है? मैक्स इज डूइंग इट एट 5 करोड़. ठीक है, इट्स अ नेक्स्ट लेवल लाइफस्टाइल. दे आर ब्रिंगिंग लाइक माइंडेड पीपल ऑन द सेम टेबल.
they're bringing the clubhouses with their amenities, healthcare within the community. So वो लेकिन एक टैबू है, that taboo will take time to go off. Few of the developers are working on it. मैं अगेन उसी डेवलपर का नाम लेता हूँ, मैक्स का. दे आर क्रिएटिंग ए इंटरजेनरेशनल, या DLF भी अपना जो आर्बर के साथ लेके आ रहा है. सो दे आर क्रिएटिंग ए इकोसिस्टम वेयर यू हैव अ राइट एज people staying with the senior living members, so that gives an environment to the whole ecosystem. Coming back to you again, you have been in the industry for last 20 years or say 2 decades, and you have actually built that trust with the customers or clients, and everybody actually knows about your work ethics. But when you are absent, say you are not there in your office, how do you scale that across the team? So Ankur, this is one of important question and critical question. देखो, वैल्यूज ना कभी भी किसी में इम्बाइब नहीं करी जा सकती. वैल्यूज हर एक की अपनी पर्सनल होती है, ठीक है. वर्क एथिक्स हर एक के अपने होते हैं. वी कैन क्रिएट अ वर्क एथिक्स ऑफ दैट ऑफिस, वी कैन क्रिएट अ वर्क कल्चर ऑफ दैट ऑफिस. हम अंकुर वी मॉनिटर इट टू द टी, ठीक है. जब हमारा टीम का बच्चा कोई ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, वी मॉनिटर, मी और मीनाक्षी इज गोइंग टू मॉनिटर इट टू द टी. हम जो CRM तक यूज करते हैं उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होती है ऑफ द कॉल्स, ठीक है. वी रैंडमली डू द टेस्टिंग ऑफ इट, वी डू द checking of it कि how those calls have been taken by our employees, so that we can tell them that this is not the right way, or you are communicating, it's a miscommunication to the clients, and we do it to the T. मैं अगर ऑफिस में नहीं हूँ और वो चल रहा है, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द फोन. वो ट्रांजेक्शंस जो भी हो रही हैं, व्हाट कमिटमेंट्स हैव बीन कमिटेड टू द क्लाइंट्स, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय अस. Okay. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सौरभ, एक बात बताओ, एक कस्टमर को कब लगता है कि यार अब ये खरीदना है मुझे, दिस इज, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, आई वांट टू बाय दिस नाउ. सो व्हाट एग्जैक्टली ड्राइव्स देम टू से आई एम कॉन्फिडेंट? डेटा है, ट्रैक रिकॉर्ड है, क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है. व्हाट एग्जैक्टली इज इन द कस्टमर्स माइंड व्हेन दे से आई एम कॉन्फिडेंट, आई वांट टू बाय दिस? देखो, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं. फर्स्ट इज द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट हाउस. इट कम्स फ्रॉम द फैमिली कि भाई फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर उतरता है चीज़ें देखने के लिए, ठीक है. उसके फाइनेंसेस कैसे हैं, ठीक है. आज अगर उसका फाइनेंस अलाउ करता है उसको 5 करोड़ की चीज़, तो वो 10 करोड़ की तो ढूंढने नहीं निकलेगा. सो आजकल के जो क्लाइंट्स भी हैं, दोज आर इन्फॉर्म्ड क्लाइंट्स, दे अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, दे वोंट सी द थिंग्स दैट दोज आर नॉट इन देयर रीच. तो दे ब्रैकेट इट कि हाँ मैं 20% ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है, बाय टेकिंग द लीवरेज फ्रॉम द बैंक, लेकिन मैं उसको क्रॉस नहीं करूंगा. तो क्लाइंट आता है, अपना माइंडसेट से आता है. तो देयर आर मल्टीपल विजिट्स दोज हैपन. पहली विजिट में कोई क्लोजर नहीं होता. देयर इज अ जेस्टेशन पीरियड फॉर अ क्लोजर ऑफ अ डील, और वो जेस्टेशन पीरियड कि मार्केट किस लेवल पे चल रही है, मार्केट बहुत तेजी पे चल रही है, मार्केट अभी स्लो डाउन है, वो जेस्टेशन पीरियड वेरी करता है. एक डील को क्लोज होने में हफ्ता भी लग सकता है, एक डील को क्लोज होने में साल भी लग सकता है. उसी क्लाइंट, मतलब वो देखने के लिए पहले हस्बैंड वाइफ खुद आएंगे या हस्बैंड खुद आएगा, वो देख के जाएगा. ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट कि क्या क्या चीजें हैं. देन देयर विल बी अ सेकंड विजिट. वो पिक करेंगे कि हाँ ये 3 प्रोजेक्ट्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट इन द जर्नी. उनको फिर वो 3 दिखाए जाएंगे, फिर वो उनके पेरेंट्स आएंगे, फिर देन वी विल सिट ऑन द फाइनेंसेस, देन वी विल सिट विद द बैंक्स. सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन. डिसीजन तब लिया जाता है जब द होल फैमिली इज ऑन द सेम पेज, द फाइनेंसेस फिट इन, दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट फिट इन. यहां पे हमारा रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उनको वो वाले प्रोडक्ट्स दिखाएं, ठीक है, जो उनको राइटली फिट है, एंड एट द सेम टाइम हम उनको पुश भी करते हैं टुवर्ड्स अ राइट प्रोडक्ट, राइट ब्रांड. क्योंकि कई डेवलपर्स के तो हमें वैल्यू सिस्टम पता है कि वो कैसा डिलीवरी करके, तो आज हम उनको पूरा प्रॉपर कंपैरिजन, प्रोज कॉन्स, नेगेटिव्स, पॉजिटिव सब दे देते हैं ऑन द टेबल. कई बार आपको टेम्पटेशन नहीं होती कि ये डेवलपर ज़्यादा ब्रोकरेज दे रहा है,
लेकिन आप खुद कन्विक्शन नहीं है आपको कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन ब्रोकर ज़्यादा मिल रही है तो एक काम करता हूँ इसको बेच देता हूँ। कभी ऐसी टेम्पटेशन होती है? देखो, टेम्पटेशन तो पैसे को लेके सबकी होती है, लेकिन हमने अपने पूरे लॉज रूल्स बिल्कुल क्लियर करे हुए हैं। एंड आवर बिजनेस मॉडल इज दैट वी मेजरली वर्क ऑन रेफरेंसेस और द रिपीट सेल्स। वी डोंट वर्क ऑन कि एक बार क्लाइंट आया, काट दिया जी, चलो आगे चलो, अब अगला क्लाइंट ढूंढते। वी डोंट वर्क लाइक दैट। तो वी कंटेन आवर दैट अर्ज टू एंड वी स्टिक टू। I have been saying it on my platform also, buy only A grade developer that has a strong pedigree, has a strong value system, that has delivered good to the society and the community. कोई 2-3 रूल ऐसे बताओ जो एक सीरियस होम बायर्स को एक्चुअली ध्यान में रखना चाहिए। वन मस्ट फॉलो दोज रूल्स। Stick to basics. Don't over leverage yourself. 5 करोड़ का बजट है, 6 करोड़ तक स्ट्रेच करो, लीवरेज लेकर उससे ज़्यादा मत स्ट्रेच करो। हैव द कैपेसिटी टू होल्ड इट टिल द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर इन्वेस्टर हो तो भी, एंड यूज़र है ऑब्वियसली, एंड यूज़र तो होल्ड करेगा। तो बेसिक्स अपने फाइनेंसेस को लेके पहले तो राइट रखो। पिक अ राइट लोकेशन, पिक अ राइट डेवलपर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अकेले जाके देखना चाहते हो मार्केट, आप अकेले जाके देखो, बट आई थिंक अ गुड रियल्टर, अ गुड कंसल्टेंट कैन बी अ वैल्यू एड टू योर ओवरऑल home search, because he can bring lot of insights on the table which you might not know. आप उन ब्रोकर्स के साथ, वो मेरे को डिस्काउंट इतना दे रहा है, अरे आप डिस्काउंट खरीदने थोड़ी निकले थे, आप तो घर खरीदने निकले थे। करेक्ट। डिस्काउंट तो कम, सेकेंडरी, ठीक है। आपको वो लाख रुपया ज्यादा दे रहा है या लाख रुपया कम दे रहा है, आपने क्या डिस्काउंट, पहले तो वो क्लियर करो ना कि आपने डिस्काउंट खरीदना था या घर खरीदना था। पहले घर को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद उससे बात करो कि मैं मेरे को मेरा बजट ये है। इफ it's a good realtor, good consultant, he will understand your finances and everything. And at the same time, I request the clients also to understand the realtors pain also, the consultants who are running the office, who are running the companies, and taking time to roam around with you, giving their insight to you. At least जितना हक बनता है उनका, वो तो उनको मिलना चाहिए। मैं I am not saying that everything is theirs, but at the same time, amicably at a right point where things settle, it should be done. No, I think it's a good insight coming from a realtor who has been in industry for 2 decades now. One question जो बहुत लोग पूछते हैं, एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गुड़गांव का जो रियल एस्टेट मोमेंटम है अभी, वो रियल है या डू यू एक्चुअली थिंक फंडामेंटली कुछ चेंज हो रहा है या होने वाला है? You are absolutely right. Fundamentally हाँ चेंज होने वाला है, but it is going to change on a positive side. It's a structured driven market. The demand is fundamentally right. It's not only investor driven market. Last time 2012-13 का जो collapse था रियल एस्टेट का, that was the reason because infra ready नहीं था, रेरा एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। इन्वेस्टर ड्राइव कर रहा था, फ्लिपर्स थे मार्केट के अंदर। आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, रेरा बॉडी इज देयर, पीपल अंडरस्टैंड कि क्या पैसा लगा के कितना मेरे को कमाना है, लीवरेज को वो लिमिटेड यूज करते हुए दे आर ड्राइविंग देयर थिंग्स। तो आई थिंक दिस टाइम द मार्केट इज फंडामेंटली राइट। देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट्स बीइंग क्रिएटेड इन गुड़गांव। बहुत नई नई चीजें आ रही हैं, ग्लोबल सिटी आ रहा है, साइबर सिटी 2 आ रहा है, विजन सिटी आ रहा है, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। जब इतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली हाउसिंग की रिक्वायरमेंट भी इमीडिएटली आएगी मार्केट के अंदर। सो स्ट्रक्चरली फंडामेंटली दिस टाइम गुड़गांव रियल एस्टेट इज मूविंग ऑन ए राइट ट्रेंड। अब अगर आप ये बोलोगे कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और वो सिंगल डे बिक गया, वो उसको सक्सेस कहते हैं? उसको सक्सेस नहीं कहते बॉस। सक्सेस इज दैट अ राइट प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड टू राइट पीपल, और जो उस प्रोडक्ट को होल्ड करें, राइट नेबरहुड क्रिएट हो उस प्रोडक्ट का। और रियल एस्टेट इज वेयर मतलब 5 करोड़ या 10 करोड़ के अपार्टमेंट सिंगल डे, डेवलपर को खुशी हो रही है, डेवलपर चौड़ा होकर बोल रहा है अरे मैंने तो सिंगल डे
बेच लिया. लेकिन रियल एस्टेट अगर आप मेच्योर्ड कम्युनिटीज या मेच्योर्ड लोकेशंस पे देखोगे वो कभी ऐसे था ही नहीं. तो सिंगल डे सेल रियलिटी है या मिथ है? नहीं, रियलिटी बिल्कुल रियलिटी है यार. आज अगर ये लिस्टेड डेवलपर्स हैं वो तो बिल्कुल भी फोर्ज नहीं कर सकते नंबर. दे हैव टू पुट इट इन सेबी. इट्स अ रियलिटी. ठीक है. और मैं बीच में एक बॉम्बे के इन्फ्लुएंसर ने ये बात बोली थी कि ये इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है, फ्लिपर्स होते हैं 10% देंगे फिर निकल जाएंगे. अरे बॉस, आपको उनको यही नहीं पता कि यहाँ पे डेवलपर्स लॉक इन रखते हैं. 1 साल का तो लॉक इन होता है. आज DLF प्रिवानास बिके हैं, इट हैज ए लॉक इन ऑफ 25%. उसके बाद भाई आज अगर 10 करोड़ की कोई चीज ले रहा है तो 2.5 करोड़ की तो एक्सपोजर ले रहा है ना वो उस चीज के लिए. ठीक है. तो फ्लिपर्स नहीं है, इट्स ए मेच्योर मार्केट. और आई थिंक इवन द डेवलपर्स हियर एंड द एंड यूजर्स और द इन्वेस्टर्स शुड अंडरस्टैंड कि ये सिंगल सेल थ्योरी, अरे उसका लॉन्च आया था वो तो 1 दिन में बिक गया था. इस प्रोडक्ट में कमी है क्योंकि ये 1 दिन में नहीं बिका. अरे इट्स ए कॉर्पोरेट, दे वांट टू फेज आउट देयर प्रोडक्ट. वो 2-3 फेजेस में उसको सेल करना चाहते हैं. उस प्रोडक्ट की एक जर्नी क्रिएट करना चाहते हैं. उसको डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे सेल करना चाहते हैं. इसलिए नहीं बिका. करेक्ट. आप हर चीज को अंडरस्टैंड तो करो. आपको इकोनॉमिक्स पता नहीं है रियल एस्टेट का, उसका 1 दिन में बिक गया तो मैं तो वही खरीदूंगा. सही बात है. So what do you think, there are so many launches in the market. How the buyer should actually go about it? How he should actually be, think about the risk which is involved? देखो, रिस्क इज ऑब्वियसली फर्स्ट इज द फाइनेंसेस, पर्सनल फाइनेंसेस. ठीक है. ही हैज टू वर्क आउट ऑन हिज पर्सनल फाइनेंसेस एंड द लीवरेज पॉसिबिलिटीज दैट ही इज गोइंग टू गेट. एंड द इंडस्ट्री इज वर्किंग इन. अभी IT में जैसे हम सुन रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर है बिकॉज ऑफ AI एंड एवरीथिंग. जो भी है उस इंडस्ट्री में काम करता है उसको पता होता है कि क्या. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रिस्क ही शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट. एंड सेकेंडली वही है कि आपका बजट 4 करोड़ का है, स्टिक टू योर बजट, डोंट गो ओवरबोर्ड. 20% इंक्रीमेंट टू योर बजट इज ओके बट डोंट गो ओवरबोर्ड. क्योंकि जब आप सैम्पल्स देखने जाते हो डेवलपर्स के, आपको एक वाओ फैक्टर आता है. ठीक है. वो आपको लगेगा, वो आपको इंगेज करते हैं, स्ट्राइक करते हैं कि हाँ लेट्स बाय इट. बट आई थिंक स्टिक टू योर बजट्स, डोंट ओवरबोर्ड, गो ओवरबोर्ड in terms of that's a major risk I feel. And secondly, you should have the holding capacity to keep it. Find a right location, right developer, right product with those amenities which are very much required by your family. So आज से 5-10 साल बाद गुड़गांव कैसा दिखता है? How do you foresee it? अंकुर, इट्स ऑलवेज एवर इवॉल्विंग सिटी. ठीक है. बहुत नई नई चीज़ें आने वाली हैं. जैसे मैंने बताया, ग्लोबल सिटी, साइबर सिटी 2, विजन सिटी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना है. SPR पे पूरा इट्स ए थॉरोफेयर दैट्स बीइंग गोइंग टू बी क्रिएटेड. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की वाइडनिंग है और उधर भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है. And lot of A-grade developers are coming from Bombay to Oberoi Realty is going to launch themselves. Prestige is launching themselves in New Gurgaon. Lodha is coming towards Gurgaon. The right competition is coming to this particular market. You will see this market more evolved, more settled, more mature in coming times. जो हमने past में देखा, I think these B, C, D grade developers, I won't think that they will be able to sell their own product. They might have to go for collaboration with these A grade developers. ऐसे products की acceptability नहीं होगी. Developers को समझ आ चुका है कि अब buyer हर चीज़ नहीं buy करेगा. He will also do his R&D. And the consultants like us, we never push for a wrong product to our clients. Tell me one thing. What is one principle which you can never compromise on? I think the values and ethics and the commitment that has been made to the customer, that's the utmost. And मैं अपने लाख रुपए कमाने के लिए किसी के करोड़ रुपए नहीं फंसाऊंगा. That's the principle we follow. His 1 crore is more important than earning my 1 lakh rupee.
ठीक है, so that's a principle. We give a right guidance to the customers. We are absolutely clear. We will earn less. रात को आराम से नींद आनी चाहिए. That's the main policy of my personal main policy. सौरभ, एक सवाल ना बार बार आ रहा है, मे बी दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू आस्क. ईरान, यूएस, इजराइल वॉर जो हुआ है अभी, ये चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट लगता है इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, या फिर मे बी गुड़गांव के ऊपर क्या इम्पैक्ट लगता है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये अंकुर. आज मतलब हर एक के दिमाग में ये है, बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट, सब कुछ आज न्यूज़ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इस चीज़ से. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी ये कह रहा है कि दुबई मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, या बहुत चीज़ें छुपाई जा रही हैं मार्केट से, कुछ अच्छा नहीं हो रहा. ठीक है, द दुबई मार्केट इज गोइंग टू ब्लीड लाइक एनीथिंग इन कमिंग टाइम्स. जो मिडल ईस्ट पे अटैक्स हुए या दुबई मार्केट के ऊपर ईरान ने अटैक्स करे, दुबई मार्केट का जो एक परसेप्शन था मार्केट के अंदर कि इट इज सेफेस्ट कंट्री ऑन ग्राउंड, वो एक्सपोज हो चुका है. ठीक है, इट इज नॉट. ठीक है, उसकी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है नहीं. ठीक है, इट्स डिपेंडेंट ऑन यूएस टू सपोर्ट हिम, और यूएस भी कुछ कर नहीं पाया. दिस दुबई रियल एस्टेट मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन इन अ बिग वे एंड इट्स गोइंग टू बी मेसी. जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट्स लास्ट 5 साल 3 साल के अंदर करी है, पोस्ट कोविड करी है या पहले भी करी हुई है, आप अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिट तो करा के दिखाओ वहां पे जाके. ठीक है, आज वहां से ये ऑप्शंस आने लग गई हैं कि जी डिस्ट्रेस डील्स आ गई, 30% डिस्काउंट पे आ रही है. वहां पे इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कोई ऐसी डिस्ट्रेस डील्स नहीं है. हमारे अपने क्लाइंट्स हैं हु हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन दुबई मार्केट, दे आर नॉट गेटिंग द एग्जिट फ्रॉम दुबई मार्केट, दे वांट टू टेक द एग्जिट. वो कह रहे हैं कि एक बार ये सारा कुछ ठंडा हो जाए, वी विल गो टू दुबई मार्केट एंड वी विल ट्राई टू एग्जिट आवर मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो फ्रॉम दे. ये जो गलत नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि वो दुबई मार्केट सब बढ़िया है यार, इन्वेस्टमेंट और आएगी, ये सब ये नैरेटिव एब्सोल्युटली ऑन ग्राउंड इन्वेस्टर से पूछो जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है. तो हम कैसे इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर अब्जॉर्प्शन आ रहा है. आपको पता है कि हर साल इंडियंस कितना इन्वेस्ट करते हैं दुबई रियल एस्टेट मार्केट में? इट्स अराउंड 1 लाख करोड़. अब ये 1 लाख करोड़ रुपया दुबई मार्केट में नहीं जाएगा, इट्स गोइंग टू गेट इन्वेस्टेड इनटू इंडियन रियल एस्टेट मार्केट. गुड़गांव में लगेगा, बॉम्बे में लगेगा, बैंगलोर में लगेगा, हर रीजन्स के अंदर लगेगा. इंडियन रियल एस्टेट मार्केट और स्ट्रांग होगी. दूसरी चीज और बताता हूं कि ये जो ट्रंप ने टेरिफ्स या ट्रंप अपने लॉज अपनी स्टेट में चेंज करा जा रहा है, एनआरआईज की क्वेरी लेवल्स हैव गॉन सब्सटेंशियली अप, चाहे मिडिल ईस्ट से बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, लेकिन यूएस से भी इंक्वायरीज है. यूएस से इनफैक्ट इंक्वायरीज सबसे कम होती थी, लेकिन अब यूएस से सबसे ज्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं क्योंकि उसने जो वीजा के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस लगा दिए हैं और इमिग्रेशन लॉज पे भी वो क्वेश्चन लगाया जा रहा है. तो मैं सिंपल सा एक इंसाइट देना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को या मैं अपने क्लाइंट्स को पर्सनली कि दुबई जैसी मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है जब आपके पास अपनी सिटी इज इवॉल्विंग, अपनी कंट्री इज डूइंग ग्रेट, योर पर्सनल इकोनॉमी द जीडीपी इज ग्रोइंग एट ए फास्टेस्ट रेट. व्हाई यू वांट टू गो टू दुबई और समवेयर एल्स टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री ना? अभी इनकम टैक्स ने और फेमा ने इतने नोटिस भेजे हैं द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दुबई मार्केट. उसका क्या रीजन? आप क्रेडिट कार्ड से वहां पे बाइंग नहीं कर सकते. लोगों ने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करी हैं वहां पे क्रेडिट कार्ड से. कैश पैसा यहां से बहुत जाता है. अरे तुम्हें लॉज भी पता है, आपने कैश में दुबई के अंदर प्रॉपर्टी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इनकम टैक्स, ईडी हैव योर डेटाबेसेस व्हाट यू आर बाइंग इन दुबई मार्केट्स. व्हाई यू आर डूइंग इट? इन्वेस्ट इन इंडियन रियल एस्टेट. आई एम नॉट पुशिंग कि आप इंडियन रियल एस्टेट में पुश डालो. Buy Indian assets in India, whether it's equity, whether it's real estate, any of the asset classes. इतने आप
दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो, दूसरे के लॉ के हिसाब से चलते हो, फिर इनकम टैक्स के नोटिस भी झेलते हो, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकती. व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दिस? इट हैज बिकम ए लायबिलिटी फॉर पीपल. ट्रू ट्रू. एक और हॉट टॉपिक है एटलीस्ट गुड़गांव रियल एस्टेट में, जिसको हम ब्रांडेड रेजिडेंसेस बोल रहे हैं. लॉट ऑफ फैशन ब्रांड्स, लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल ब्रांड्स, दे आर एक्चुअली collaborating with real estate developers. Yeah. And they are coming out with co-branded residences. Yep. What do you think about it? Is it actually helping? Is it helpful for the buyers also? Is it actually giving value to the buyers? What is your take on this? Ankur, simple. If that particular brand is adding value to the product, then it's a right real estate improvement in the project. आज फैशन ब्रांड क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है आई डोंट नो, ठीक है, कुछ है जो इंप्रूवमेंट कर रहा है, शायद डेवलपर उसको कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा सही तरह, ठीक है. तो मतलब माय एडवाइस टू द पीपल इज ब्रांडेड रेजिडेंसेस, इट्स अ गुड कंसेप्ट, इट हैज बीन एक्नॉलेज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, बट डू यू थिंक दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज एडिंग राइट वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट? देन ओनली गो फॉर those products. और वो कौन से बायर्स होंगे जो ब्रांडेड रेजिडेंसेस को खरीदना चाहते होंगे? वो क्या ऐसा ढूंढ रहे होंगे जो रेगुलर या ट्रेडिशनल ग्रुप हाउसिंग में नहीं दिख रहा है, और वो they just want the name tag. Okay. They just want the name tag कि मैं इधर रहता हूँ. So they want an address. They want an address. लेकिन क्या एड्रेस उस को वैल्यू को जस्टिफाई कर पा रहा है? पर मैं एक ब्रांडेड रेजिडेंसेस ले आऊं एक अजीब सी लोकेशन में, will that work? नहीं, it will not work. So location still plays an important role. The basics of the real estate have to be always right. The location, the developer, the pedigree of the developer, these brands come later. तो आज अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, वो कौन से की मार्केट्स हैं? से फॉर एग्जांपल गुड़गांव, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, which are the key markets for you where the buyers can actually look at investing? देखो अंकुर, वैसे तो वी डू गुड़गांव ओनली, ठीक है. सो आप मुझसे आप गुड़गांव का पूछोगे तो मैं सारा बता सकता हूँ, बट लेकिन जो मैं डेटा पॉइंट्स देखता हूँ, आई थिंक गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर and Pune have been the hot markets. Hyderabad is becoming a very hot market at this juncture. Tier 2 ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है over a period of last 3 years. चाहे वो मोहाली हो गया, लखनऊ हो गया, these sites have given phenomenal returns to their investors or the buyers. All the markets are good markets. You will see absorption coming up. If those are the commercial hubs, Bangalore is a commercial hub. It's a IT hub. Pune is a IT hub, automobile hub. Mumbai is a financial hub. Gurgaon is a mix of IT, financial hub. Lot of corporates work here. Obviously commercial जहाँ पे expand होता जाएगा, वहाँ पे आपको housing demand या real estate demand के अंदर spike देखने को मिलेगा. अगर हम गुड़गांव की बात करें, वो ऐसे कौन से की माइक्रो मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको लगता है बहुत पोटेंशियल है आने वाले समय में? फॉर एग्जांपल गोल्फ कोर्स रोड है जो बहुत टाइम से है, एग्जिस्टिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी इन प्लेस. देन देयर इज अ लोकेशन कॉल्ड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. देन वी हैव सदर्न पेरिफेरी रोड, न्यू अपकमिंग लोकेशन कॉल्ड द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव ऑल्सो एग्जिस्ट. So which as per you is the key micro market which actually works well? All the micro markets are good. Golf Course Road has seen its own journey over a period of time. आज जाके वो इवॉल्व हो चुकी है, थोड़ा सा सैचुरेशन भी आ चुका है प्राइसिंग के अंदर. लैंड सप्लाई नहीं है, लिमिटेड लैंड सप्लाई है. जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे लैंड पार्सल्स पे लॉन्चेस हैं, 3 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़, वो लॉन्चेस आ रहे हैं यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो हमेशा ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर ऑपरेटिंग हियर. डीएलएफ ने बहुत अच्छा इकोसिस्टम बना के दिया हुआ है जिसके ऊपर ऑल दीज डेवलपर्स आर राइडिंग ऑन. तो गोल्फ कोर्स रोड इज अ गुड मार्केट. हु वांट टू स्टे इन एट प्रेजेंट इमीडिएट, it's a good proposition. Golf course extension is an alternate market to golf course road. जो उसको बाय नहीं कर सकता, आज golf course road ऑपरेट कर रही है 50,000 रुपये फुट पे, जो उसको बाय नहीं कर सकता तो आपको 25,000 रुपये फुट पे golf course extension road मिल जाता है. That is just 5 किलोमीटर्स भी नहीं है, बहुत 2-2.5 किलोमीटर पे आ जाती है. ओबरॉय रियलिटी वहाँ पे आ रहा है.
सोबा ने अभी लॉन्च किया अपने प्रोजेक्ट को, मैक्स आ रहा है, एमआर की बहुत डेवलपमेंट्स हैं, M3M की बहुत डेवलपमेंट्स हैं, स्मार्ट वर्ड का डेवलपमेंट है, टाक का है, DLF फार्बर है, लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर देयर ऑन द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन. इट्स ऑल्टरनेट मार्केट, इट विल ग्रो. ये जो मार्केट है एक्सटेंशन रोड मार्केट, इट विल ग्रो क्योंकि बहुत कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, ITES, SEZ भी इसी तरफ पड़ता है, एंड इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है टू द गोल्फ कोर्स रोड, दैट इज हेल्पिंग इट टू ग्रो. अब आते हैं हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे. द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये जो ग्लोबल सिटी आने वाला है, इट्स गोइंग टू चेंज द डायनामिक्स. विजन सिटी आने वाला है, गोइंग टू चेंज द डायनामिक्स. पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लूप इतना स्ट्रांग बनाया है गवर्नमेंट में, बस डेवलपर्स को डिमांड एंड सप्लाई अगर वो चेक पे रखेंगे, धीरे धीरे प्राइजेस ऊपर जाते रहेंगे. तो अगर हम अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं ना, इन माइक्रो मार्केट्स की, हर एक माइक्रो मार्केट की अपनी अब्जॉर्प्शन है, सेट ऑफ क्लाइंट है जो उसको बाय करता है. द्वारका एक्सप्रेसवे का बायर एक्सटेंशन रोड को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का बायर द्वारका एक्सप्रेसवे को एक्सप्लोर नहीं कर रहे. सो दैट्स हाउ दीज मार्केट्स आर गोइंग टू इवॉल्व. एवरी माइक्रो मार्केट इज an important market. Everyone has their own set of absorptions और सारी ग्रो करेंगी विद टाइम. लेकिन जो मेरे को सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट नजर आता है, दैट्स गोइंग टू हैपन ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड मार्केट. एट द सेम टाइम आई कैन सी SPR रोड भी ग्रो करने के लिए, क्योंकि साइबर सिटी 2 आ रहा है वहां पे. एंड थर्डली, जो ग्लोबल सिटी के आसपास जितना भी डेवलपमेंट है, दैट विल गिव यू अ मैसिव रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Okay, fair point. Tell me one thing. As a realtor, what challenges do you face from the market, from other stakeholders also, say from developer side, or from your fellow peers, fellow realtors, or from your customers also? What challenges do you see when you actually go out and operate in the market? मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ, ये जो गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट है, बहुत गंदी रियल एस्टेट मार्केट है. ठीक है, 90% of the realtors here are, they don't know the market, they don't have ethics, they don't have value system. ठीक है, वो आपके पैसे भी आपको जो कमिट करे हो वो भी वापस नहीं करेंगे, और ऐसा हो रहा है. उन्होंने अपने लड़के कैचर्स लगाए हुए हैं साइट के बाहर. वो आप मैं एंड यूजर हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे गाड़ी लेके, मेरी गाड़ी का नंबर ले लिया जाता है, उन्होंने पता नहीं क्या अलाइनमेंट करी हुई है, वहां से उनको वो नंबर्स मिलते हैं और उनको वो कॉल करते हैं. जो डेवलपर हमें, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, DLF 3% देता है, या अभी प्रिवाना नॉर्थ के अंदर उसने 2.3% इंक्लूडिंग GST दी है. मैं अगर मेरे को कोई पास बैक देना है, भाई हर क्लाइंट आके तो पास बैक, अगर मेरे को पास बैक देना है, ठीक है, तो मैं उसी में से ही दूंगा ना. मैं 4% या 5% तो नहीं कमिट कर सकता. कमिटमेंट्स गलत करते हैं क्लाइंट्स, क्योंकि वो उस लड़के ने कभी फोन ही नहीं उठाना आपकी बुकिंग कराने के बाद. ये वी टेल आवर क्लाइंट्स, दिस इज अ रॉन्ग डूइंग दैट हैपनिंग इन द मार्केट. बहुत डेवलपर्स ने ब्लैकलिस्ट करे हैं इन ब्रोकर्स, एंड विच इज रिक्वायर्ड. आज मैं ये डेवलपर्स के लिए भी बताना चाहता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के 60 सेक्टर में, एक एग्जांपल ले रहा हूं. अगला प्रोडक्ट है 62 सेक्टर के अंदर दूसरे डेवलपर का. ये जो ब्रोकर है, ये जो चैनल पार्टनर है, जो गाड़ियों से नंबर निकालता है, वो अपने लड़के आपकी साइट के बाहर खड़ा करता है, उधर से नंबर्स की फोटोज लेता है, उनको कॉल करता है, आपके प्रोडक्ट को ही नेगेटिव करता है, और उसको 62 में जो लॉन्च हो रहा है उसमें लेके चला जाता है, जहां पे उसका रेवेन्यू रियलाइजेशन बेटर है. ठीक है, वो इस पूरे इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं. उसने मेरे रेवेन्यू पे इंपैक्ट डाला, उसने डेवलपर के रेवेन्यू पे इंपैक्ट डाला, और उसने एक मिस कम्युनिकेशन दिया कि ये ब्रांड ऐसा है या ऐसा. तो आई अर्ज ऑल दीज डेवलपर्स टू टेक एक्शन, एंड इवन एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट माय फेलो चैनल पार्टनर्स अक्रॉस कि इन ब्रोकर्स को हाईलाइट करो मार्केट के अंदर, इनके नाम लो, डेवलपर्स के यहां पे जाके बोलो कि अगर ये ब्रोकर्स इस कंपनी में काम करेंगे तो हम काम नहीं करेंगे. Sure, I feel the pain. So, do you see senior living and new formats becoming new mainstream now? I don't say mainstream, but those are going to be value additions to the product.
अब सीनियर लिविंग ऐसा नहीं हो सकता ना कि सारे सीनियर लिविंग बनने लगे जब उसकी रिक्वायरमेंट एक लिमिटेड है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया इट्स अ टैबू, पीपल शुड अंडरस्टैंड इट, विद द टाइम इट्स गोइंग टू इवॉल्व, और जैसे जैसे इवॉल्व होता जाएगा उस प्रोडक्ट कैटेगरी की एक्सेप्टेबिलिटी आती जाएगी। अब सीनियर लिविंग लाइसेंसेस गवर्नमेंट ने देने स्टार्ट करे हैं। अभी मैं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें FAR भी ज़्यादा मिल रहा है, 3 का FAR मिल रहा है, तो सीनियर लिविंग बनेगा। लेकिन FAR ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डेवलपर्स उधर ही भागने लग जाएं कि ठीक है, उसकी भी एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। ठीक है। सो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बिकम मेन स्ट्रीम, बट इट्स गोइंग टू बी बिकम पार्ट ऑफ upcoming real estate cycle, and you can see that 15-20% absorption going towards that category of I think that's a great sign. So senior living was once seen as a niche concept, you know, almost like an emotional category. क्या आपको लगता है कि सीनियर लिविंग को हम एज अ सीरियस एसेट क्लास बना सकते हैं rather than just a alternative group housing product? तो अंकुर, सीनियर लिविंग का तो अभी इन्वेस्टर्स ने सुना भी नहीं है ज़्यादा, मार्केट को पता भी नहीं है कि ये क्या प्रोडक्ट कैटेगरी है। जैसे कि मैंने बताया कि टैबू एक बहुत क्रिएटेड है, लेकिन पीपल आर कमिंग ओवर इट। एक एग्जांपल देता हूँ, मैक्स ने अंतारा देहरादून लॉन्च किया था। इट टुक देम 6 years टू सेल लिमिटेड यूनिट्स, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी लाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन आज वो जो मैक्स देहरादून का जो प्रोजेक्ट है वो 5x 6x ऑपरेट करता है। वहां पे डिमांड इतनी है, सप्लाई नहीं है। मतलब 1 BHK यू गेट इट एट अ प्राइस ऑफ 6 crores। यू थिंक व्हाट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, 95 लाख का लिया था, आज 6 करोड़ का मिलता है। दैट्स अ काइंड ऑफ possibilities that senior living have. I think education helps, awareness Education help, awareness help. Senior living आज की डेट में 2026 में it's approximately 40,000 crores market. 2031 तक इंडिया के अंदर it will reach to 13 lakh crores. इसीलिए ना at Kriva what we do, we are also coming out with a senior living concept. We don't call it senior living product. We actually call it multi-generational group housing. We want to tell the audience that this is actually a concept where we want to be inclusive. हम आपको अलग नहीं कर रहे हैं, हम आपको दूसरों से मिला रहे हैं. I think that's the concept you are talking about. Intergenerational concept. That's absolutely. So possibility it can become one of the. So when जब आप इक्विटी खरीदने जाते हो तो जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर होता है ना, कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन करो, ठीक है। स्मॉल कैप ले लो, मिड कैप ले लो, लार्ज कैप ले लो, मल्टी कैप ले लो, ये सब। तो जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मल्टीपल लोकेशंस को बाय करो। जैसे अभी हम अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, आप गोल्फ कोर्स रोड को बाय करो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को बाय करो, द्वारका एक्सप्रेसवे को बाय करो, राइट लोकेशंस, राइट प्रोडक्ट, राइट डेवलपर। लेकिन उसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी अंडरस्टैंड करो, ठीक है। आपने सुपर लग्जरी ले लिया, लेकिन एट ए सेम टाइम आपने जाके द्वारका एक्सप्रेसवे पे सीनियर लिविंग बाय कर लिया, या SPR पे जाके सीनियर लिविंग बाय कर लिया। यू हैव एडेड वन होराइजन टू योर पोर्टफोलियो, ठीक है। जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड है उसमें ही तो ज्यादा एप्रिसिएशन का पोटेंशियल है आज की डेट। तो अगर मैं लिमिटेड सप्लाई की बात करूं तो गुड़गांव से थोड़ा हट रहा हूं। दिल्ली में अगर देखें तो लोग ज़्यादातर लो राइज कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। लोग बंगलों में रहते हैं या फ्लोर्स में रहते हैं या लो राइज अपार्टमेंट्स होंगे उसमें रहते हैं। डू यू सी अ पोटेंशियल देयर वेयर डेवलपर्स कैन एक्चुअली be out in the open, they can actually construct high rises but in the ultra luxury category? Yes. आप साउथ दिल्ली में हाई राइज लॉन्च तो करो, there's a huge demand. If it's rightly priced and the product has a right value proposition, then it will sell. भाई आज आपको उसको rightly price करना है, उसके अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन, amenities, everything has to be rightly fit in कि वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो बेसिकली अभी ऑप्शंस ही नहीं है लोगों के पास। साउथ दिल्ली के अंदर दे वांट बिगर स्पेसेस, ठीक है। आप बड़े घर बनाओ, बड़ी बालकनीज दो, ठीक है। यू गिव अ फील ऑफ कोठी और अ फ्लोर इन अ कॉन्डोमिनियम। दे आर गेटिंग बोथ साइड ऑफ द वर्ड्स। आपको फ्लोर टाइप लिविंग भी मिल गई
एट ए सेम टाइम आपको अमेनिटीज भी मिल गई, सिक्योरिटी भी मिल गई, सेफ्टी भी मिल गई। करेक्ट। तो ऐसा अगर आप मिक्सचर दो वहां पे तो इट विल सेल। करेक्ट। सौरभ, कई बार ना कभी मैं अपने फ्रेंड से या कुछ नोन सर्कल में मिलता हूँ, सोशल गैदरिंग्स में मिलता हूँ, उनसे बात करो ना कि व्हेन आई टेल देम दैट आई एम एक्चुअली इनटू रियल एस्टेट, यू नो, वन स्टेटमेंट व्हिच आई यूजुअली हियर इज कि यार मैं तब खरीदूंगा जब प्राइसेस डाउन चले जाएंगे। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? लैंड एक्विजिशन प्राइस हैव गॉन अप। जमीनों के रेट ऊपर जा चुके हैं। आज बिल्डर जब लैंड को एक्वायर करता है, दे आर एक्वायरिंग एट ए हाई प्राइस। अभी गोदरेज ने लैंड एक्विजिशन करी है 11 एकड़ की गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, 100 रुपए एकड़। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैव गॉन अप स्टीपली अप। ठीक है, जो इनपुट कॉस्ट है आपका रॉ मटेरियल, इट्स गेटिंग एक्सपेंसिव। ठीक है, आपकी लैंड एक्विजिशन कॉस्ट इज गोइंग अप। मतलब एवरीथिंग वी आर सीइंग दैट इन्फ्लेशन, एवरीथिंग इज इन्फ्लेशन रिलेटेड। सारी चीजें ऊपर जा रही हैं तो प्राइसेस कैसे नीचे आ सकते हैं? कोई डेवलपर चैरिटी करने के लिए तो बैठा नहीं है, कोई भी कंपनी चैरिटी करने के लिए तो बनी नहीं है। एवरीवन इज गोइंग टू अर्न देयर ROIs। भाई X + 20% तो हर कोई कमाएगा, या XYZ जो भी एक थॉट प्रोसेस होता है कंपनी को ड्राइव करने के लिए। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अगर किसी क्लाइंट को या किसी को ये लग रहा है कि द प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन, तो वो मेरे ख्याल से अपनी दुनिया में ही रह रहा है बंदा। वो उसको आई थिंक ही शुड अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। द लैंड एक्विजिशन कॉस्ट हैव गॉन अप, द इनपुट कॉस्ट टू मेक द प्रोजेक्ट हैज गॉन अप। तो टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट्स जो हुई हैं उसकी वजह से भी कहीं कहीं जगह एफिशिएंसी आ गई है कंस्ट्रक्शन में, बट एट ए सेम टाइम द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैव गॉन अप। आपको क्या लगता है जब हम घर खरीदते हैं तो हमें लॉजिक से घर खरीदना चाहिए या इमोशनल एंगल यूज करना चाहिए? या आपके बायर्स ज्यादातर कैसे खरीदते हैं? वो इमोशनल बाइंग ज्यादा करते हैं या लॉजिकल बाइंग ज्यादा करते हैं? इट्स अ मिक्स। मतलब लॉजिक एंड इमोशंस गो हैंड बाय हैंड व्हेन यू आर बाइंग ए housing residential real estate. When you work on your finances, work on the location and everything, emotional comes when the whole family get involved. भाई आपके पेरेंट्स भी आपको बता रहे हैं, आपकी वाइफ डिसाइड कर रहे हो ये कमरा किसका होगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ इंटीरियर ऐसे करेंगे। बच्चा भी बता रहा है कि पापा ये मेरा कमरा होगा। तो इट्स ए फैमिली बाइंग, इट्स ए इमोशनल बाइंग, लेकिन लॉजिकल है बिल्कुल। मतलब इट कांट बी इंडिपेंडेंट, इट हैज टू बी, इट वर्क्स हैंड इन हैंड बेसिकली। हैंड इन हैंड, आइसोलेशन में दोनों काम नहीं, क्योंकि फाइनेंसेस आर वेरी लॉजिकल व्हेन यू टेक योर एक्शंस। If this conversation made you pause even for a moment, then we have done our job. Because beyond pricing, beyond projects, real estate is about decisions that shape lives. I'm Ankur Dwivedi and this is Real Estate Talks. See you in the next one.